Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Last time we were discussing about cell cycle in which we have studied interphase और हमने ये बात पढ़ी थी कि during interphase cell slightly grows, its DNA replicates, chromosome become duplicated, and then some other metabolic activities, chemical activities, biochemical activities take place. As a result, cell prepare itself for cell division. Today, we will discuss mitosis. So first of all, what is mitosis? Mitosis is a type of cell division in which the parent cell divides into two daughter cells, and it ensures the same number of chromosomes in the daughter cell as that in the parent cells. माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही होते हैं जितने पेरेंट सेल में थे. Mitosis take place in both plants and animals. Mitosis take place in both plants and animals as well as in haploid cell as well as in diploid cell. माइटोसिस प्लांट्स में भी होती है, माइटोसिस एनिमल्स में भी होती है, हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होती है, डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है, और इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. माइटोसिस प्लांट्स में भी होगी, माइटोसिस एनिमल्स में भी होगी, हैप्लॉइड सेल्स में भी होगी, डिप्लॉइड सेल्स में भी होगी. हैप्लॉइड सेल mean having single set of chromosomes where chromosomes are not present in the form of pair, or diploid cells having two sets of chromosomes where all the chromosomes are present in the form of pairs. Although events of mitosis in plants are very much similar to that of animals, but there are some differences. प्लांट और एनिमल की माइटोसिस काफी हद तक सिमिलर होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं. सो वी डिस्कस हियर ओनली माइटोसिस इन एनिमल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. यही बात यहां लिखी है. इन स्पाइट ऑफ स्लाइट डिफरेंसेस, मेजर स्टेप्स ऑफ माइटोसिस आर सिमिलर इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स. However, to avoid the confusion, our statement will base on the animal cells. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइटोसिस टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल्स in nearly all parts of the body if and when required. Then phases of mitosis. Mitosis is a continuous process, but conventionally it may be divided into two phases. For our convenience, we can divide it into two phases. Number one, karyokinesis, which involves the division of nucleus. Karyon se mean nucleus, kinesis mean division. So karyokinesis mean division of nucleus. And second phase is cytokinesis. That refers to division of the whole cells, division of cytoplasm. So first of all, karyokinesis. Karyokinesis can be divided into four phases. Number one, prophase. Number two, metaphase. Number three, anaphase. Number four, telophase. याद रखें, it is a continuous process, but for our convenience, we have divided it into four phases.
हम इन चारों फेजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफेज। ड्यूरिंग प्रोफेज, changes take place in the cytoplasm as well as in the nucleus. पूरी सेल डिवीजन के दौरान, माइटोसिस के दौरान, या पर्टिकुलरली हम प्रोफेज की अगर बात करें तो चेंजेस साइटोप्लाज्म के अंदर भी आती हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी आती हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में आने वाली चेंजेस, जो इवेंट्स होते हैं, वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, तकरीबन एक साथ हो रहे होते हैं। लेकिन अगेन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले साइटोप्लाज्म के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर न्यूक्लियस के अंदर होने वाली चेंजेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंजेस इन द साइटोप्लाज्म। आप ये देख सकते हैं, ये एक एनिमल सेल दिखाया। एनिमल सेल में दिस इज न्यूक्लियस हैविंग द क्रोमैटिन, एंड याद रखें दिस क्रोमैटिन हैज ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द इंटरफेस, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे। दिस इज outside membrane, plasma membrane. Inside the nucleus, this is nucleolus. Or here, outside the nucleus, these are two centrosome with the pair of centriole. Although एक ही सेंट्रोसोम होता है सेल के अंदर, लेकिन इंटरफेस के दौरान सेंट्रोसोम हैज डिवाइडेड टू फॉर्म टू सेंट्रोसोम, यानी पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैज बीन डिवाइडेड टू फॉर्म टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल ड्यूरिंग द इंटरफेस, बट दे वर प्रेजेंट इन द सेम सेंट्रोसोम. They are present together. Both the centrosome are present together. Yeah, two pair of centriole are present in the same centrosome. At the beginning of the prophase in an animal cell, the partition of the centriole take place, which have been duplicated during interphase but present in the same centrosome. मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को. In animal cells, pair of centrioles have been divided to form two pairs during the interphase, but they were present in the same centrosome. इंटरफेस के दौरान सेंट्रियोल के एक पेयर से सेंट्रियोल के दो पेयर बन चुके हैं, लेकिन वो एक ही सेंट्रोसोम में मौजूद थे. लेकिन प्रोफेज के शुरू में, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज, दीज सेंट्रोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग. Early in the mitosis, the two pair of centrioles separate and migrate to the opposite side of the nucleus, establishing bipolarity of the dividing cell. ये अब सेंट्रियोल के दोनों पेयर एक दूसरे से अपोजिट साइड की तरफ मूव करना शुरू हो गए. ये इधर को मूव करना शुरू हो जाएगा, ये इधर को, और इस तरह से सेल के अंदर दो पोल्स बन जाएंगे. तो पहली बात, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज इन एनिमल सेल, पार्टीशन ऑफ centriole take place, which have been duplicated during the interphase but present in the same centromere. Early in the mitosis, two pair of centrioles separate and migrate to the opposite side of the nucleus, establishing bipolarity in the dividing cell. इस बात को मैं आखिरी दफा रिपीट करूं, आप सुने. हमने ये पढ़ा कि pair of centrioles have been divided to form two pair
in the interface, but these two pairs were present in the same centrosome. So early in the prophase, early in the mitosis, two pair of centrioles separate from each other and they start moving toward the opposite poles. As a result, bipolarity is created in the cells. ये opposite pole की तरफ move कर रहे हैं. Then three sets of microtubules fibers originate from each pair of centriole. सेंट्रियोल के दो पेयर बन गए, वो पेयर अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गए. अब उन पेयर से 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट. आप देख सकते हैं, सपोज कि ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ चले गए. उस दौरान, उस वक्त तक आमतौर न्यूक्लियस जो है वो डिसअपीयर हो चुका होता है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं दिखाया. और क्रोमोसोम इस तरह से डिस्प्ले में भी नहीं होते, सिर्फ आपको ये 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाने के लिए ये डायग्राम बनाई गई है. पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक वाला, ये दूसरे वाला पेयर अपोजिट पोल की तरफ चले गए. 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. पहला कौन सा है? दीज आर विच रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल. ये सेंट्रियोल से यूं हर तरफ को बाहर की तरफ निकलते हैं. They are called astral microtubules and they form the ester. One set of microtubules which radiate outward from the centriole. ये वाले, ये फिरोजी कलर में जो नजर आ रहे हैं, ये हर तरफ को होंगे, इस तरफ को, इस तरफ को, ये एस्टर बनाएंगे. और इधर ये वाले जो हैं, ये एस्टर्स हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और एस्टर बनाते हैं. एक तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का ये सेट हो गया. वन सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल. और दूसरा सेट जो है कि ये रेड कलर में या मैरून कलर में देख सकते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वन सेंट्रियोल. इधर से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल, एक पोल से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स दूसरे पोल के आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. इन्हें कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ बोथ द सेंट्रियोल इंटरडिजिटेट. और तीसरे किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो ग्रीन कलर के हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल. इधर से आएंगे और इस तरह से इस सेंट्रियोल से आएंगे और दे अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ेंगे बाद में, अभी नहीं, बाद में जुड़ेंगे. इन्हें कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स. काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. Both these polar microtubules and kinetochore microtubules are called spindle. याद रखें, हमने बुक में ये पढ़ना है, ये लिखा 3 sets of microtubules originate from each pair of centrioles. One set, the astral microtubules, radiate outward from to form ester. Other 2 set of microtubules compose the spindle. वो स्पिंडल बनाते हैं. उसमें से एक हैं kinetochore microtubules attach the kinetochore of the chromosome, and polar microtubules do not interact with the chromosomes but instead interdigitate with the polar microtubules from the opposite side. These microtubules are composed of protein tubulin and traces of RNA. And this whole structure, this specialized microtubule structure that comprises of esters, spindles, is called mitotic apparatus. Centriole, esters, polar microtubules, ester microtubules. So this whole structure is called
mitotic apparatus. This is larger than the nucleus and it is designed to attach, capture chromosomes, aligning them, and finally separating them so that equal distribution of chromosome is ensured. माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल क्या है? माइटोटिक apparatus का रोल क्या है? माइटोटिक apparatus न्यूक्लियस से बड़ा होता है, न्यूक्लियस उस वक्त तक खत्म हो जाता है. इसका काम यह है, it is used to attach, capture, align and equal distribution of chromosome. ये क्रोमोसोम को कैप्चर करता है, अटैच करता है, इनकी अलाइनमेंट, अरेंजमेंट करता है और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है. Mitotic apparatus is used to attach, capture, align and equal distribution of a chromosome. तो यहां हमने जो साइटोप्लाज्म में आने वाली चेंजेस थी प्रोफेज के दौरान वो पढ़ी. मैं रिपीट कर देता हूं, यही इसमें मुश्किल बात होगी. Cytoplasm, the changes which take place in the cytoplasm during the prophase. Pair of centrioles, पहली बार, pair of centrioles which have divided to form two pairs but present in the same centrosome during early prophase, these pair of centriole start moving toward the opposite poles. As a result, bipolarity is created in the cells. Then, when these pair of centrioles reach their respective poles, three sets of microtubules originate. Ester microtubules, which radiate outward from the centriole. These one, they are called esters. One set, ester microtubules. Second set, kinetochore microtubules. These are kinetochore microtubules. They will attach with the kinetochore of the chromosome in later stages. Teesra set, polar microtubules do not interact with the chromosome, but they interdigitate with the polar microtubule of the opposite site. This whole structure comprising of esters, polar microtubules, and kinetochore microtubules constitute the mitotic apparatus. It is larger than the nucleus. It is used to capture, align, and equal distribution of chromosomes. Then changes which take place in the nucleus during the prophase. ये हमने जो पहली तब्दीलियां पढ़ी वो साइटोप्लाज्म के अंदर आने वाली चेंजेस थी. Now, changes in the nucleus. During interphase, which is non-dividing phase of the cell cycle, chromosomes are not visible even with the electron microscope. इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम नजर नहीं आते, इवन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते. अगरचे क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं इंटरफेस के दौरान, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे. बट यूजिंग हिस्टोलॉजिक स्टेन्स, टिश्यूज को स्टडी करने वाली स्टेन्स, हीमाटॉक्सिलिन वगैरह, डीएनए को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए आमतौर पर हीमाटॉक्सिलिन स्टेन इस्तेमाल की जाती है. उनके लिए उसने जनरल नाम लिखा हिस्टोलॉजिक स्टेन्स. यूजिंग हिस्टोलॉजिक स्टेन्स ऑफ a network of very fine thread can be visualized. This network is called chromatin. इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम नजर नहीं आते इवन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, but using histologic stain we can see a very fine network of thread. That very fine network of thread is called chromatin. Then during prophase, chromatin material get condensed
by folding, and the chromosome appear as thin threads. क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है, क्रोमेटिन मटेरियल फोल्ड होता है, कंडेंसेशन होती जाती है, क्रोमोसोम नजर आना शुरू होते हैं और उस क्रोमोसोम की लेंथ 0.25 नैनो मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर तक हो सकती है। प्रोफेज के शुरू में क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक and each chromosome is visible having two sister chromatins attached at the same centromere. क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम थिक से थिक होते जाते हैं और उस वक्त each chromosome consists of two sister chromatins which is attached with the same centromere. Towards the end of the prophase, nuclear envelope disappears and nuclear material is released in the cytoplasm. Nuclei also disappear. Cytoplasm become viscous. Cytoplasm गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं, this is interface. पेयर ऑफ सेंट्रियोल से टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल बनकर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। यहां अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, उनके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने का अमल शुरू हो गया। यहां वेरी फाइन नेटवर्क ऑफ थ्रेड था यूजिंग हिस्टोलॉजी एक्सचेंज, जिसको क्रोमेटिन कहा। अब प्रोफेज में क्रोमोसोम स्लाइटली विजिबल होना शुरू हो गए। 4 क्रोमोसोम्स लिए, 1 2 3 4 क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो गए और ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहां से लेकर यहां तक ये एक फाइबर, एक क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, और वे एक ही सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए। क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू हो गए। न्यूक्लियोलस स्लाइटली थिन हो गया, लाइट हो गया, डिसअपीयर होना शुरू हो गया, और साथ ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्रेगमेंट्स बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होना शुरू हो गई। दिस इज अर्ली प्रोफेज। और लेट प्रोफेज में ये हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, बिल्कुल ही न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, नजर नहीं आ रहा यहां पर, और ये जो सेंट्रियोल थे वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए और उनके बीच दरमियान में 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए। वो 3 सेट कौन कौन से होंगे? एक ये वाला विच रेडिएट आउटवर्ड, दिस इज एस्टर। ये इधर से आने वाला पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इधर से आने वाले पोलर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ गया। इस तरह के जो होंगे, जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे, और ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ेंगे बाद में। और याद रखिएगा, प्रोफेज की इस डायग्राम में हमने क्रोमोसोम को अलाइन नहीं करना, क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं, उलझे, स्कैटर्ड हैं ऑन द स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़े नहीं हुए। तो जो प्रोफेज के अंदर इवेंट्स हुए हैं उसमें separation of centrioles, creating bipolarity in the cell, then formation of esters and spindle fibers, माइटोटिक apparatus का बनना, फिर क्रोमोसोम का विजिबल होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपीयर होना, ये प्रोफेज के मेजर इवेंट्स हैं। देन ये वही आप हमारी आपकी बुक की जो डायग्राम है वो दिखाई गई है। न्यूक्लियस है, सेंट्रोसोम जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल दिखाए गए हैं, ये वाले 2 रॉड अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो गए, यहाँ अपोजिट पोल की तरफ चले गए, यहाँ क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो गए साथ ही, और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया, क्रोमोसोम विजिबल हो गए और माइटोटिक apparatus बन गया। ये लेट प्रोफेज है। मुख्तलिफ बुक्स वाले मुख्तलिफ तरीकों से डायग्राम दिखाएंगे।
सेकंड फेज है माइटोसिस की, मेटाफेज। इसमें सबसे पहले वो हमें ये बताएगा कि मेटाफेज क्रोमोसोम कैसा है। ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज अ डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर which consists of two sister chromatids attached at a point called centromere or primary constriction. Or centromere has a special area, the kinetochore, with a specific base arrangement and special proteins where kinetochore fibers of the mitotic apparatus attach. आप देख सकते हैं ये एक मेटाफेज क्रोमोसोम है। मेटाफेज क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। कर्सर पे देखें, यहां से लेकर ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, और जिस जगह पे ये आपस में जुड़े हुए हैं ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर कहलाता है। और सेंट्रोमियर में एक खास रीजन है काइनेटोकोर, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये काइनेटोकोर क्या है? इट इज अ स्पेशल एरिया which consists of a particular arrangement of bases, nucleotides and particular proteins. और काइनेटोकोर वो हिस्सा है जिसके साथ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स विल अटैच। ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये काइनेटोकोर के साथ इस तरह से जुड़े होते हैं, एक इस तरफ से आएगा और एक दूसरी तरफ से काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा। दिस इज मेटाफेज क्रोमोसोम। तो each metaphase chromosome consists of two sister chromatids attached with the same centromere, or centromere has a special region called kinetochore, or kinetochore consists of a specific sequence of bases and special proteins. Then मेटाफेज का खास इवेंट क्या होगा? Kinetochore fiber of spindle attached to the kinetochore region of the chromosome and align them at the equator of the spindle, forming equatorial plate या metaphase plate. मेटाफेज की खास बात यह है कि kinetochore fiber of the spindle attach with the kinetochore of the chromosome and align the chromosome at the equator of the spindle, forming metaphase plate या equatorial plate. और याद रखें, each kinetochore will get two fiber, one from each pole. Each kinetochore gets two fiber, one from each pole. इसको हम देख सकते हैं। ये सेल दिखाया गया जिसमें ये क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमोसोम से हमने शुरू किया था, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमोसोम्स अलाइन हुए। ये डिस्प्ले ऑफ क्रोमोसोम है सेंटर में, ये क्रोमोसोम इस तरह से अटैच हो गए हैं। दिस इज मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, इस डिस्प्ले को कहेंगे। और ये वाले जो फाइबर्स हैं जो काइनेटोकोर के साथ जुड़े हुए हैं ये कहलाएंगे काइनेटोकोर फाइबर्स। ये काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, और ये वाले जो फाइबर काइनेटोकोर जो आपस में जुड़ जाएंगे वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे या नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहलाएंगे। इसके बाद थर्ड फेज, एनाफेज। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द माइटोसिस which ensured equal distribution of chromosome in the daughter cells. एनाफेज का खास इवेंट क्या है? Kinetochore fiber of the spindle contract toward their respective poles. जो काइनेटोकोर फाइबर्स होंगे वो श्रिंक होंगे, वो कंट्रैक्ट होंगे, वो सिकुड़ेंगे, अपने अपने पोल की तरफ छोटे होते जाएंगे। और एट द सेम टाइम जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो इलोंगेट होंगे। दिस विल exert force and sister chromatids are separated from the centromere. As a result, half sister chromatids travel towards each pole. आप देख सकते हैं, these are the kinetochore fibers which shrink toward the respective poles. These are polar microtubules जो elongate हो जाएंगे।
पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट हो रहे हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल श्रिंक हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए। और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद दे आर नो इंडिविजुअल क्रोमोसोम and they are moving toward the opposite poles. This is the major event of anaphase. During anaphase, kinetochore fiber contact, polar microtubule elongate, sister chromatids separate, and they move toward the opposite poles. Then telophase. Reaching of the chromosome at the opposite pole terminate anaphase and start telophase. जब क्रोमोसोम अपने अपने अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे, एनाफेज का एंड हो जाएगा, टेलोफेज स्टार्ट हो जाएगी। और यहां फिर रिवर्स ऑफ प्रोफेज होगा। टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। क्रोमोसोम विल डीकंडेंस ड्यू टू अनफोल्डिंग, अल्टीमेटली दे डिसअपीयर एंड बिकम क्रोमैटन। क्रोमोसोम टेलोफेज में क्रोमोसोम रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच गए, क्रोमोसोम अनफोल्ड होना शुरू हो गए, थिन होना शुरू हो गए, अल्टीमेटली डिसअपीयर हो गए। आपने देखा कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हैव फॉर्म्ड। ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए, क्रोमोसोम के 2 सेट बन गए, एक ये वाला सेट, एक ये वाला सेट। हर सेट के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। हर सेट के अंदर न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। और यूं एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, जो माइटोटिक अपरेटस था, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो टेलोफेज में क्रोमोसोम रीच द रिस्पेक्टिव पोल्स, रिवर्स ऑफ प्रोफेज होगा, यानी क्रोमोसोम डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइजेस, nuclear membrane nuclei reorganize, resulting 2 nuclei at the 2 pole of the cell. Then हमने देखा कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गई। अब हमने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म करनी है, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? एनिमल सेल में ड्यूरिंग लेट टेलोफेज द एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल। जब टेलोफेज का एंड होता है तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से सिग्नल जाते हैं सेल के एक्यूटर की तरफ, जिस जगह पे मेटाफेज प्लेट थी वहां सिग्नल जाते हैं, वेयर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर एक्टिवेटेड। वहां एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। एज ए रिजल्ट कंटेक्टाइल रिंग इज फॉर्म्ड, और विद द फॉर्मेशन ऑफ कंटेक्टाइल रिंग क्लीवेज फरो develop. This cleavage furrow deepens toward the center of the cell, dividing the parent cell into 2 daughter cells. मैं आपको बताता हूं कि ये 2 न्यूक्लियस बन गए। यहां जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, इस जगह पर और इस जगह पर, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिग्नल भेजते हैं सेल के एक्यूटर में, इस जगह पर यहां मेटाफेज प्लेट थी। सेल के एक्यूटर में जब सिग्नल जाते हैं तो यहां एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन एक्टिवेट होती और कंटेक्टाइल रिंग बनता है। आप इसको समझ लेंगे ये कंटेक्टाइल रिंग है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेक्टाइल रिंग, क्लीवेज फरो, ये जो दरार सी पड़ती है, इनवर्ड पिंचिंग होती है सेल की, क्लीवेज फरो बनती है। दिस क्लीवेज फरो ग्रोज डीपन एंड डीपन, ये डीप से डीप होती जाती है, एंड अल्टीमेटली इट डिवाइड द सेल इनटू 2 डॉटर सेल। इस तरह से माइटोसिस कंप्लीट हो गई। इससे हाउ डज माइटोसिस इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स, ये हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।